اس چیز کو یاد رکھیے گا، یسوع مسیح نے کہا کہ بوجھ کے بندے لوگوں میرے پاس ہو، میں تمہیں کیا کبھی اس چیز پہ غور کی کہ بوجھ کس چیز کا ہے؟ تو میں اس کو کہوں گا کہ گناہ کا بوجھ جو ہمارے دل و دماغ پہ لدا رہتا ہے اور جو ہمیں آگے نہیں بڑھنے دیتا، اس بوجھ کو خدا نے کہا کہ لے کے میرے پاس آؤ، اس بوجھ کو تمہارے اوپر سے میں اتار دوں گا۔ اور وہ بوجھ کیسے اترتا ہے؟ جب ہم بپتسمہ لیتے ہیں، یسوع مسیح کو قبول کرتے ہیں، اس پہ ہم کافی ڈیٹیل سے سیکھ چکے ہیں کہ ہمارے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو جب معافی ہو چکی ہے تو اب ہمیں اس بوجھ کے تلے دبے رہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جج کے لیے جو مجرم ہے اس کی بس ایک ہی حیثیت ہے کہ یہ مجرم ہے اور یہ سزا کا حقدار ہے، اور جو قانون ہوتے ہیں ان کے مطابق اس کو سزا دی جاتی ہے۔ ایسے جج کے دل کے اندر مجرم کے لیے رحم نہیں ہوتا، اس نے قانون کے مطابق اس کو سزا دینی ہے۔ بس پرانے عہد نامے کے اندر خدا کا جو کردار تھا وہ تھا جج کا کردار، اور ہم کون تھے؟ مجرم۔ کیا تھے؟ مجرم کس چیز کے تھے؟ گناہ کی وجہ سے ہم گنہگار ہیں اور خدا کی نظر میں ہم مجرم ہیں۔ اور جب خدا ہمیں دیکھتا تھا تو وہ جج کی حیثیت سے دیکھتا تھا، اور جب ہمیں اسے گناہ نظر آتا تھا وہ سیدھا سزا دیتا تھا۔ اور اس کی ثبوت ہمیں کیا ملتے ہیں؟ نوح کے زمانے میں دنیا کا تباہ ہونا، بنی اسرائیل کے زمانے میں فرعون اور اس کے لشکر کا سمندر کے اندر غرق ہونا، سدوم اور عمورہ کے علاقے کے لوگوں کا آگ کے وسیلہ سے تباہ ہونا، یہ سارے واقعات خدا کے جج کے کردار کو ظاہر کرتے ہیں۔ خدا نے دیکھا، اسے مجرم نظر آئے اور سزا۔ ایسا ہی تھا، ہمیں اس چیز کو گہرے طریقے سے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اب ایسا نہیں ہے۔ یاد رکھیے گا، دو طرح کی معافی ہوتی ہے، ایک کہتے ہیں جوڈیشنل فورگیونس، ایک ہوتی ہے پیرنٹل فورگیونس۔ اگر ہم کوئی غلطی کرتے ہیں، ہم جج کے سامنے پیش ہوتے ہیں، وہ صرف قوانین کے مطابق ہمیں دیکھے گا اور ہمیں سزا دے گا۔ ہم سے کوئی غلطی سرزد ہوئی ہے تو ہمارے والدین ہمیں گنہگار کی نظر سے دیکھیں گے یا اپنی اولاد کی نظر سے دیکھیں گے؟ سیم لائن۔ پرانے عہد نامے کے مطابق خدا جج تھا اور وہ صرف ہمیں مجرم کی نظر سے دیکھتا تھا، لیکن نئے عہد کے اندر یسوع مسیح کے خون کے وسیلہ سے خدا نے جو ہمارے ساتھ یہ عہد باندھا ہے، خدا مجسم ہو کے آیا اور اس نے ہمارے لیے خون بہا دیا، اور اس خون کے وسیلہ سے اس نے ہمارا جو خدا کے ساتھ رشتہ تھا اس کو بدل دیا، اور اب ہمارا اور خدا کا پہلے رشتہ تھا جج اور مجرم والا، اب ہو گیا باپ اور اولاد والا۔ پہلے جب ہمیں دیکھتا تھا تو معافی نہیں تھی، اب جب ہمیں دیکھتا ہے تو اسے کیا نظر آتی ہے؟ اپنی اولاد، اس کے بچے، ہم کیا ہے؟ اس کے بیٹے اور اس کی بیٹیاں۔ اور کبھی بھی ماں باپ اپنے بیٹیاں، بیٹے اور بیٹا نظر انداز نہیں کرتا۔ کیا آپ ایسا کرتے ہیں؟ ایسا نہیں کرتے۔ تو اس چیز کو سمجھنا ضروری ہے۔ اس چیز کو سمجھنا کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ ہم آج بھی شریعت کے قوانین کے مطابق کئی دفعہ اپنے ذہن کو بنا کے آج بھی ہم اساس گناہ کے اندر جیتے ہیں۔ تو آج اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اسی سے باہر نکلیں۔ ہم اب گناہ کے اندر نہیں ہیں، ہمارے گناہوں کے لیے کسی نے خون بہا دیا ہے، ہماری معافی ہو چکی ہے۔ اب خدا جو ہے وہ ہمارے لیے جج نہیں ہے، ہمارا باپ ہے، اور اگر باپ ہے تو اس نے ہمیں معاف کر دیا ہے اور ہمیں اپنے گلے سے لگا لیا ہے۔ اب ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اب ہمیں گناہ کے احساس کے نیچے دب کے جینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس میں خون بہانے کے سے ہم راستہ باز ہیں، ہم پاک ہیں، اب ایمان کے ساتھ جینے کی ضرورت ہے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ عزیزو، فضل جو ہے دو طرح کا ہے۔ آپ نے صرف فضل سنا ہوگا کہ خدا کا فضل، یاد رکھیے گا فضل ہے اور فضل دو طرح کا ہے۔ ایک ہے عام فضل جو سب کے لیے ہے۔ آپ نے ایک چیز نوٹس کی، ایک بات پہلے یاد رکھیے گا، خدا کا عام فضل دنیا کے اوپر رہنے والے ہر ایک انسان پہ ہے، اور عام فضل کے اندر دنیاوی چیزیں آتی ہیں۔ کیا خدا سب کو روٹی دیتا ہے؟
क्या खुदा सबको औलाद देता है? क्या खुदा सबको रोजगार देता है? क्या खुदा सबको सबने खुदा ने कर दिया हुआ है? चाहे वो किसी भी मजहब का है, चाहे वो किसी भी कौम और कबीले का है, दुनिया के अंदर रहते हुए ये चीजें सबके जिंदगी के अंदर आप देखेंगे। ऐसा है? ये आम फजल है। इंसान होने के नाते खुदा ने ये वाला फजल सबके ऊपर किया है। यीशु मसीह के वसीला से जो हमारे ऊपर हुआ है वो खास फजल है, और खास फजल के जरिए हमें रूहानी बरकत मिलती है। हालेलुया, 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 हालेलुया। खास फजल जो यीशु मसीह के जरिए हमारे ऊपर हुआ है, उसके वसीले से हमें जो यीशु मसीह पे हम ईमान लाते हैं उन्हें बाप कहने का हक मिल जाता है। खास फजल के जरिए दूसरी कौमों के लिए याद रखिएगा, आज भी खुदा जज है और वो मुजरम, उनका रिश्ता आज भी वही है। लेकिन वो जो यीशु मसीह को कबूल करता है उसमें एक खास फजल होता है, और उस खास फजल के जरिए हम खुदा क्या बन जाते हैं? बेटे और बेटियां। फिर हमारी माफी हो जाती है हमारे लिए, और दोस्त के दरवाजे खुल जाते हैं, और हर तरह की रूहानी बरकत मेज पे रटी पड़ी हुई है हमारे लिए। ये खास फजल की बदौलत है, ये खुदा के जज से बाप बनने की बदौलत है, ये यीशु के सलीब पे लहू बहाने की बदौलत है। हालेलुया, हालेलुया। आपको क्या लगता है, ये खुदा ने हमारे ऊपर रहम किया है या हमारे साथ इंसाफ किया है? जवाब आया है, ज्यादा जवाब आया है कि रहम किया है। फर्ज करें मैं यहां से चले जाता हूं किसी दूसरे शहर, मेरा बटवा गुम हो गया, अब मेरे पास पैसे नहीं है। अब मैं एक होटल में जाता हूँ और उसके मालिक की मिन्नत करता हूँ, उससे मैं कहता हूँ कि सर मैं लाहौर से आया हूँ, मेरे साथ ऐसे ऐसे हादसा हुआ, मेरे सारे पैसे इस तरह से जो है चुरा के ले गया, अब मेरे पास पैसे नहीं है कि मैं होटल का किराया अदा कर सकूँ, बराए मेहरबानी मुझे प्लीज़ रहने दिया जाए। वो मेरे ऊपर तरस खाता है और मुझे अपने होटल के कमरे में रहने देता है। एक दिन वो मुझे रहने देता है, मुझे खाना भी दिया 3 टाइम का। अब दूसरे दिन वो मालिक मेरे पास आएगा और मुझे कहेगा जी भाई जी मैंने एक दिन आपको रहने दिया है, अब मुझे बताएं क्या आपका कुछ अरेंज हुआ? मैं कहता हूँ जी मेरे पास अभी भी पैसे नहीं है और मुझे काम नहीं मिला, बराए मेहरबानी मुझे एक दिन और रहने दिया जाए। वो होटल का मालिक मेरे ऊपर फिर से तरस खाता है, मुझे फिर रहने देता। तीसरे दिन वो फिर से आता है, मैं कहता हूँ नहीं, वो क्या करे? एक दिन उसने मेरे ऊपर रहने दिया, 2 दिन किया, 3 दिन किया, 4 दिन किया, 5 दिन किया। अगर ऐसे ही सिलसिला चलता रहता है, आपको क्या लगता है कितने दिन वो मेरे ऊपर रहम करेगा? एक दिन ऐसा आएगा, अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमेशा मेरे ऊपर तरस नहीं खाएगा और मुझे उठा के धक्के दे के अपने होटल से क्या करेगा? पानी निकाल दे। ये है रहम जो उसने मेरे ऊपर किया। कितने दिनों के लिए? कुछ दिन के लिए। अब एक दूसरी कंडीशन देखिए, मैं वहां पे गया, सेम लाइफ, मेरी जेब काटी गई, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं अपने एक दोस्त के पास जाता हूँ, उसे बताता हूँ यार मेरे साथ ऐसा हो गया। वो दोस्त कहता है नो प्रॉब्लम। मेरा दोस्त मुझे लेके उसी होटल में जाता है जिस होटल में मैंने पहले बात की है। वो उस मालिक को कहता है कि ये मेरा दोस्त है, इसने 1 माह के लिए यहाँ पे रहना है। मेरा दोस्त मेरा 1 महीने का होटल का किराया इकट्ठा उस होटल के मालिक को दे देता है और पूरा 1 महीना रहता हूँ। होटल का मालिक आकर मुझे कुछ नहीं पूछता, कुछ नहीं कहता। अब आपने मुझे बताना है जो पहले होटल के मालिक ने मेरे ऊपर किया था वो क्या था? रहम। और जो अब कर रहा है वो क्या है? इंसाफ। होटल के मालिक को क्या चाहिए? पैसा। क्या चाहिए? पैसा। वो चाहे मैं दूं चाहे कोई और दे। अब उसने मेरे दोस्त ने पैसे पे किए और उसके पे किए हुए पैसों पे मैं रह रहा हूँ और होटल का मालिक मेरे ऊपर कोई रहम नहीं कर रहा, बल्कि वो इंसाफ हुआ है। उसकी एक रूल था पैसे पे करो रहो और उसको फॉलो कर रहा हूँ, पूरा करो, मैं सेम लाइफ। इस चीज को समझिएगा, जो रहम है वो लिमिटेड है, वो महदूद है,
तरस खाते नहीं रहोगे। लेकिन जो इंसाफ होता है उसमें हमेशा के लिए। सेम लाइक इसको समझे, पुराने अहदनामे के अंदर खुदा रहम करता था, तो पुराने अहदनामे के अंदर रहम होता था जो थोड़ी देर के लिए होता था, थोड़ी देर के लिए रहम, फिर नाराजगी, रहम, नाराजगी, रहम, नाराजगी। हमारे ऊपर खुदा ने रहम नहीं किया, इंसाफ कर दिया। क्या कर दिया है? क्या कर दिया है? कैसे किया है? गुनाह की मजदूरी, गुनाह की वजह से किसी को मरना पड़ेगा, ये था इंसाफ। खुदा ने कहा नहीं, मैं इनको बचाऊंगा और हमेशा के लिए इनको पर रहम करूंगा। अब्दी रहम, अब्दी शफकत, अब्दी सुलह। अब्दी का मतलब होता है हमेशा 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 के लिए, कभी ना खत्म होने के लिए। तो अजीजों क्या हुआ, हमारे गुनाहों के लिए कोई और मर गया। कौन? खुदा यीशु मसीह। कौन? खुदा यीशु मसीह। खुदा यीशु मसीह। तो अब उसके हमारी जगह पे जान देने के वसीला से, हमारी जगह पे खून बहाने के वसीला से क्या हुआ, हमारे ऊपर फजल हुआ। कौन सा फजल? खास फजल। कौन सा फजल? खास फजल। और अब हमारे ऊपर अब्दी फजल हो चुका है। जो पुराने अहद के मुताबिक होता था ना कि हम गुनाह हमसे हो जाता था, खुदा नाराज हो जाता था, इस चीज को यही तो समझना है कि अब ऐसा नहीं है। आया नबी की किताब 4 और उसकी 7 और 8 आयत। मैंने एक दम के लिए तुझे छोड़ दिया, लेकिन रहमत की फरावानी से तुझे ले लूंगा। खुदावंद तेरा नजात देने वाला फरमाता है कि कहर की शिद्दत में मैंने एकदम के लिए तुझसे मुंह छुपाया, पर अब मैं अब्दी शफकत से तुझ पर रहम करूंगा। किन पर? हम पर, जो यीशु मसीह के वसीला से खुदा के पास आते हैं। हमारे ऊपर अब्दी शफकत हो चुकी है। अब्दी शफकत का मतलब है हमेशा हमेशा हमेशा। आए एक और आयत पढ़े, इसी बात की 10वीं आयत। खुदावंद तुझ पर रहम करने वाला यूं फरमाता है कि पहाड़ तो जाते रहें और टेले टल जाएं, लेकिन मेरी शफकत कभी तुझ पर से जाती ना रहेगी और मेरा सुलह का अहद ना टलेगा। मेरा सुलह का अहद ना टलेगा। अब खुदा ने हमारे ऊपर अब्दी शफकत कर दी है। अब हमारे साथ खुदा ने अब्दी सुलह कर ली है, तो फिर आखिरी सांसों तक खुदा हमसे नाराज नहीं होगा। हम सोचते हैं खुदा मेरे साथ नाराज हो गया है, हम सोचते हैं अब मैं फिर से गुनाहगार हो गया हूँ, हम सोचते हैं कि खुदा मेरे साथ नाराज है और वो मेरे ऊपर गुस्सा है। जब आप तौबा कर लेते हैं, आप यीशु मसीह पे ईमान ले आते हैं, आप यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात देना कबूल कर लेते हैं, तो पहली बार खुदा ने आपके ऊपर अब्दी रहम कर दी है। अब्दी मतलब आखिरी सांसों तक जब रहम हो गया, खुदा ने आपके साथ अब्दी सुलह कर ली है, तो अब आखिरी सांसों तक गुनाह के बोझ के तले दब के रहने की जरूरत नहीं है। जब भी इब्लीस आपके दिल के अंदर इस चीज को पैदा करे कि देख तूने ये किया, तूने वो किया, इब्लीस को यीशु के नाम से डांटना है और यीशु की सलीब की तरफ नजर दौड़ानी है और याद करना है कि किसी ने मेरे गुनाहों के लिए खून बहाया है, और ईमान के साथ अपने आप को कहना है कि मैं रास्तबाज हूँ, क्योंकि यीशु के खून बहाने से मैं रास्तबाज ठहराया जा चुका हूँ। इब्लीस जब हमें ये फील करवाता है ना कि तू गुनहगार है, तो बेसिकली वो हमारे जिंदगी के अंदर कमजोरी को पैदा करता है। जब ये एहसास पैदा होता है कि हम गुनहगार हैं, हम बुरे हैं, और बुरा बंदा कौन से काम करता है? बुरा बंदा अच्छे काम नहीं करता। अगर आप खुद को फील करते हैं कि हाँ मैं अच्छा हूँ, अगर आप खुद को समझते हैं कि आप अच्छे हैं, आप अच्छे काम करेंगे। अगर आप खुद को फील करते हैं कि आप बुरे हैं, तो आपसे बुरे काम होंगे। अब आप गुनहगार नहीं है बल्कि रास्तबाज हैं। अब खुदा इब्लीस आपको फील करवाएगा खुदा जैसा नाराज हो गया, खुदा तुझे भूल गया है, खुदा ने तुझे पीछे फेंक दिया है, खुदा तेरे ऊपर गुस्सा है, खुदा तुझसे नफरत करता है। इब्लीस इस तरह के हमें एहसास दिलाएगा, लेकिन हमें यीशु के नाम से उसको डांटना है और उसे क्या कहना है? ऐ अपनी शरीर चुप हो जा,
اور कहना नहीं मैं यीशु के नाम से रास्तबाज हूँ, क्योंकि कलाम मुकद्दस मुझे रास्तबाज ठहराता है। कलाम मुकद्दस मुझे बताता है कि मेरी यीशु के साथ अपनी सुलह हो चुकी है। अपने आप को बताना है कि कलाम मुकद्दस मुझे सिखाता है कि मेरे ऊपर खास फजल हो चुका है, जिसकी बदौलत अब मैं खुदा को बात कहने का इख्तियार रखता हूँ। अपने आप को याद दिलाना है कि अब मेरे लिए फिरदौस के दरवाजे खुल गए हैं। याद दिलाना है अपने आप को कि हर तरह की रूहानी बरकत मेरे लिए तैयार की गई है, उसके लिए जो यीशु मसीह मान रखता है। आपके पास खास फजल है, और वो खास फजल क्या है? आप दुआ करते हैं और आसमान खुल जाता है। आप दुआ करते हैं और मौजूद होते हैं। आप दुआ करते हैं और रूह जो लोग हैं वो बहाल होते हैं। आप दुआ करते हैं और खुदा आसमान से जवाब देता है। ये आपके ऊपर खास फजल है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हम कहता है कि हमें दुम नहीं बल्कि खुदा ने सर ठहराया से इंसानी तौर पर कहता हूँ, जिस तरह तुमने अपने अज़ा बदकारी करने के लिए नापाकी और बदकारी की गुलामी के हवाले किए थे, उसी तरह अब अपने अज़ा पाक होने के लिए रास्तबाजी की गुलामी के हवाले कर दो। अजीज एक बात को समझिएगा, हम रास्तबाज तो खुदा ने कर दिया। ये रास्तबाज करने का, रास्ते होने का मतलब ये है खुदा को जब भी देखेगा वो आपके गुनाहों को नहीं देखेगा, वो ये देखेगा ये मेरा बेटा है और ये मेरे खून से पाक हुआ है, तो उसकी नज़र में आप हमेशा उसको पाक दिखेंगे। हालेलुया। लेकिन दुनिया के अंदर हमसे गुनाह सरजद होते हैं। अब इस मसले की तरफ थोड़े हम गौर करेंगे। कलाम मुकद्दस में से पढ़ा है कि पहले हम क्या करते थे, अपने अज़ा, ये हमारा जो जिस्म है, इनकी बात होगी, यीशु मसीह को कबूल नहीं किया था, क्या करते थे? इस वजूद के वसीला से इब्लीस के काम करते थे, बुरे काम करते थे। आपको पता है कि क्या क्या गलत है, क्या क्या कलाम मुकद्दस मना करता है। अब हमें अपने वजूद को रास्तबाजी के काम करने के लिए इस्तेमाल करना है। आप इसको सोचेंगे कि ये बड़ा मुश्किल है, मैं सोचता हूँ मैं नहीं कर पाता, मुझसे ये हो जाता है, मुझसे वो हो जाता है। कि एक वक्त में इंसान एक ही काम कर सकता है। ये बॉडी है, एक वक्त में एक ही काम करेगी। हमारा फोकस होता है ये गुनाह है, ये गुनाह है, ये गुनाह है, मैंने ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना। इंसान की फितरत ऐसी है, जिस चीज से आप मना करेंगे इंसान वही करेगा। अब हमने अपनी तवज्जो गुनाह ना करने पे नहीं लगानी, हमने अपनी तवज्जो यहाँ से उठानी है और लगानी है मैंने ये करना है, मैंने ये करना है, मैंने ये करना है। जिधर आप सोचेंगे ना मैंने ये नहीं करना, वो आपसे होगा, आप उसको छोड़ दें, करें जो करना है उसमें जो तवज्जो करेंगे और उसको करेंगे तो बुराई नहीं होगी, क्योंकि हमारी बॉडी एक वक्त में ही काम कर सकती है। जब आप अच्छा काम कर रहे हैं उस वक्त बुराई नहीं है और ना होगी। आप कलाम को स्टडी कर रहे हैं, आपकी ज़िंदगी उस दौरान में क्या हो रहा है, खुदा का जलाल ज़ाहिर हो रहा है। आपने ये सोचा है मैंने लोगों के पास जाना है और कलाम सुनाना है, आप जो सोचेंगे आप वो करने में बिजी होंगे तो किसको मौका कहाँ मिलने वाला, यही मिलने वाला, और वो परेशान हो जाएगा और आपकी ज़िंदगी से खुदा का जलाल ज़ाहिर होना शुरू हो जाएगा। तो आज से हमें तवज्जो ना करने पे नहीं बल्कि करने पे लगानी है। तो लोग जो है आज भी एहसास गुनाह के नीचे दबे पड़े हैं, इब्लीस के हाथों में पड़े हुए हैं, परेशान हैं। उनको बताएं कि भाई खुदा ने आपसे सुलह कर ली है, अपनी सुलह कर ली, आप पे रहम कर लिया, आप पे मदद कर लिया, खुदा आपके इस काम से मदद कर